Hello students, welcome to the next lecture on the CSIR net, GATE and the MH set examinations. Today I will tell you how you can solve the PY questions related to the residue with the help of the shortcut tricks. I will cover the 55 plus questions in this lecture. Myself Dr. Harish Garg, you can follow my YouTube channel where you can find the playlist of the CSIR net UGC GATE. In this playlist you can see the various lectures related to the CSIR net are available for you with the help of the shortcut tricks. Now, what is the objective of this lecture? We will see how we can solve the questions related to the residue by using the shortcut tricks. I will solve the 55 plus questions in this lectures that will very beneficial for you. Always remember, एक बात हमेशा याद रखनी है बच्चों, whenever you will see the idea of the residue or whenever you will see the concept of the integration of fz, always हमेशा ही यूज करिए concept of the residue and then you can get your answer within the 10 to 15 second time period. अगर आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखोगे तो आप खुद कहेंगे सर रियली वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू. लेकिन उससे पहले, देखने से पहले उम्मीद करता हूँ वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. नाउ whenever you are interested to find the integration of the fz, always find the residue and then multiply with the 2 pi iota. How you can find the residue? That is a big question for you. How you can find the residue? For that, I hope you already watched my these previous 4 lectures related to the residue concept. उम्मीद करता हूँ आपने ये चारों वीडियोस पहले देखी होगी. अगर आपने नहीं देखी, then you can go to my YouTube channel, find the playlist complex analysis, and in this complex analysis you can see the various theory lectures. All these lectures are already explained with the help of the shortcut tricks. Also you can see the various PY question lectures available in this playlist. Now I can quickly recall you what is the methods or the shortcut tricks I have explained you. Whenever the residue you can find as a simple pole, you can use the equation number 1. Whenever you have to find the pole of order greater than 1, you can use the equation number 2. However, whenever you have used or whenever you have seen any of the terms called as a special function, exponential, sine, cosine, logarithm, tan, then you can always find the coefficient of 1 over z minus z naught. जब भी आपको किसी भी एग्जामिनेशन में, चाहे वो थ्योरी का एग्जाम है चाहे वो कंपटीशन का एग्जाम है, जब भी आपको साइन, कोसाइन, एक्सपोनेंशियल, कॉट इनवर्स, tan जो भी फंक्शन दिखाई दे, always use the residue at point is coefficient. And the last is how you can find the residue. We will use the concept of again the coefficient of 1 by z or limit z approaches infinity. Make sure you can use this formula provided the limit exists, otherwise not. Again मैं एक बार रिकॉल कर रहा हूँ, 99% or you can say the 90%, not a 99, 90% I will use this formula for computing the residue. मैं फिर कह रहा हूँ, whenever you will see the concept of the integration, you can use the residue and then multiply with the 2 pi iota. चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो. लेकिन अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं करा है और सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को, you can do it quickly. Let's start with the first question. You can see this is the sine of z. Fine. Now you can write the expansion z. What is a sine series? Sine of z is a z minus z cube over 3 factorial plus z5 over 5 factorial minus so on. Now your target is to find the residue at the point 0. So I always use the concept of coefficient of 1 over z minus 0. फाइन. लेकिन एक चीज याद रखनी है, जब भी आपको कोई भी फंक्शन है उसको आप यू कैन राइट ऑलवेज everywhere the z is written in terms of z minus z naught. In this case 0 is my z naught, तो ये z minus 0 z ही रह जाएगा. फाइन. नाउ can you find the value of the f? F is my sin z over z raised to power 8. This is z raised to power 7. This is 1 over z raised to power 5 plus 1 over 5 factorial 1 over z cube. इसके बाद क्या आएगा, माइनस z raised to power 7 over 7 factorial minus 1 over 7 factorial into z and so on. तो आपका कोफिशिएंट 1 over z का क्या आएगा,
-1/7 फैक्टोरियल इज द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। हमेशा सीरीज को एक्सपेंड करिए। दिस लेक्चर इज नोन एज रेजिड्यू ऑफ द स्पेशल फंक्शंस। ये वाला लेक्चर आप सुनिए, रेजिड्यू ऑफ द स्पेशल फंक्शन, यू कैन गेट द 15+ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स। फाइन, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अगेन this is the code, again it's a special functions, so you can find the residue is coefficient of 1/z। पर उससे पहले मैं आपको एक शॉर्टकट टिप्स दे देता हूँ जिससे आप आंसर अपना तुरंत निकाल पाओ। whenever the function is cot bz or whenever the function is say tan of bz, fine, then you can find the residue of f is a/b. In this case you can find the residue is 0 always। फाइन, ये दो शॉर्टकट ट्रिक्स आपके लिए बहुत काम आएंगी। अगर आप इस लेक्चर में देखें, क्वेश्चन में देखें तो a कितना आपका 1, b कितना आपका 1, तो रेजिड्यू कितना हो गया आपका a/b इज द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। फाइन, दिस द फर्स्ट मेथड। क्लियर? सेकंड मेथड, आप इस कोट ऑफ जेड की एक्सपेंशन निकाल लीजिए। अगर आपको एक्सपेंशन नहीं याद तो आप टेलर सीरीज का यूज कर सकते हो। देन यू कैन गेट z/3 minus z³/45 and so on। So can you find the coefficient of 1/z? You can see the coefficient of the 1/z is 1। Again the right answer is B is my correct option। But otherwise ये हमेशा दो रूल्स आप हमेशा याद रखिए। Find the, consider the function f the residue। Fine, so find the pole of the functions। Or you can find the pole, you can put the denominator as a 0। फाइन, आप इस एक्सपेंशन को भी खोल सकते हो आप, पर पहले पोल निकाल लेते हैं। z is 0 iota minus iota। इन तीनों में से लुक एट दैट फॉर विच y is greater than 0। इस केस को आप क्या लिख सकते हो 0,0। इस केस को आप क्या लिख सकते हो 0 + 1 into iota। दिस इज 0 - 1 into iota। तो सिर्फ यही केस है जिसमें आपका y greater than 0 है। इसमें y आपका क्या है -1 which is less than 0। This case is y is 0। So that means your target is to find the residue at the point iota। Fine, तो आप क्या करो, इस फंक्शन को मैं iota z पहले ब्रेक करके लिख देता हूँ, z plus iota z minus iota। तो आप क्या करो, कैसे निकालेंगे, z is equal to iota पे निकालना आपको आंसर। दिस इज द z is iota। यू कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ z is equal to iota in this box। सिर्फ z माइनस आयोटा को छोड़ दो और जो बाकी बच गया उसमें z की वैल्यू आयोटा फिल कर दो। तो न्यूमरेटर बिकम्स आयोटा स्क्वायर, डिनोमिनेटर बिकम्स आयोटा इंटू 2 आयोटा। न्यूमरेटर इज e⁻⁻1, डिनोमिनेटर इज -2 minus 1/2 e, that is a is the right answer of the problem। फाइन, वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। नाउ अगेन the function is z, I can use a³ minus b³। what is the formula is a minus b, a square plus ab plus b square। so I can write as a 2 minus z 4 a square 4 plus 4z, sorry, plus 2z plus of z square। now you can find the residue at the point 2। तो पहले इसको 2 की फॉर्म में लिख लेते हैं। इसको 2 को माइनस कॉमन निकाल लिया हमने। सो दैट विल बी 4 plus 2z plus z square। नाउ यू कैन सी z is equal to 2 is my simple pole। सिंपल पोल ही तो है ना। क्लियर? तो आप क्या करोगे, इसके अंदर आप क्या फिल कर दोगे, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ z is equal to 2। तो आंसर कितना हो गया -2 डिवाइडेड बाय 4 + 4 + 4। सो दैट विल बी 12 - 1/6 is the right answer of the problem। जब भी सिंपल पोल हो उस टर्म को छोड़ दीजिए और उसके बाद बाकी सबका रेजिड्यू में फिल कर दो वैल्यू। ओके, नाउ अगेन इस साइन ऑफ जेड। सबसे पहले सीरीज को ओपन करते हैं। साइन ऑफ जेड विच इज जेड माइनस z³/3 फैक्टोरियल प्लस z⁵5/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब मैंने क्या बताया था आपको, वेन एवर द साइन और कोसाइन कोई भी टर्म आपकी डिनोमिनेटर में है तो इस कोफिशिएंट को क्या बनाना है आपने पहले 1। तो मैं z को कॉमन ले लेता हूँ, 1 - z²/3 फैक्टोरियल
z raised to power 4 over 5 factorial and so on. So therefore आपका पहले रेसिप्रोकल निकाल लेते हैं. 1 ओवर साइन जेड कितना हो गया आपका 1 ओवर जेड. तो ये पावर क्या हो जाएगी आपकी माइनस, इसकी पावर -1 हो जाएगी. नाउ यू कैन यूज द एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन. सो दैट विल बी 1 प्लस फाइन, ये साइन चेंज हो जाएगा आपका सिंपल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. तो आपका एफ कितना हो गया, जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे. तो पहली टर्म क्या बन गई जेड क्यूब, अगली क्या बन गई 1 ओवर 3 फैक्टोरियल जेड एंड सो ऑन. फाइन, यही चाहिए ना आपको. अब देखिए ये जेड की हाईएस्ट पावर कितनी है 3. सो दैट मीन्स जेड इज इक्वल टू 0 इज द पोल ऑफ ऑर्डर 3. जो भी हाईएस्ट पावर होगी डिनोमिनेटर में दैट विल बी द पोल. सो एफ इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 1, एफ इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 2. नाउ द रेजिड्यू कैसे निकालना है आपको, कोफिशिएंट किसका लेना है 1 ओवर जेड का. तो 1 ओवर जेड का कोफिशिएंट क्या है 1 ओवर 3 फैक्टोरियल. दैट मीन्स 1 ओवर 6 इज द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम. फाइन, समझ में आ गया ये चीजें. सो दैट विल बी द आंसर. चलिए अगला चलते हैं. अगेन यहाँ पे एक्सपोनेंशियल सीरीज है, इसको एक्सपेंड कर देते हैं. 1 ई रेस्ट पावर जेड 1 प्लस जेड स्क्वायर ओवर 2 प्लस जेड क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. तो आपका टारगेट क्या है, कोफिशिएंट निकालना किसका 1 ओवर जेड का. तो यहाँ पे जेड की पावर क्यूब है नीचे, तो ये 1 ओवर जेड कब बनेगा व्हेन यू टेकन एज द कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर, यही तो बनेगा ना. देखिए आपका ई रेस टू पावर जेड ओवर जेड क्यूब करोगे तो 1 ओवर जेड क्यूब प्लस 1 ओवर जेड स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू जेड प्लस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. तो इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, दैट इज कॉल्ड एज द रेजिड्यू एट द पॉइंट 0. फाइन. और इससे क्या मिल रहा है आपको, हालांकि पूछा नहीं पर इसमें क्या मिल रहा है, दैट इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 3. क्लियर. तो आपका इसका आंसर कितना हो गया 2, इंटीग्रेशन है 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन वो 2 पाई आयोटा कैंसिल हो जाएगा. रेजिड्यू कितना हो गया आपका 1 ओवर 2 फैक्टोरियल दैट इज 1 ओवर 2. बट यहाँ देखिए एंगल कितना आपका, ये 4 पाई आयोटा है. दैट मीन्स अगर ये आपका सर्कल एक बार 2 बार रूल रोटेट हो रहा है दैट इज 2 टाइम्स रोटेशन, ये रोटेशन आपके 2 बार है ना, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2. ये 2 आपका कहां से आया रोटेशन से. फाइन, जितनी बार रोटेशन करनी है आपको, अगर यहाँ पे e की पावर 6 पाई आयोटा होता तो कितनी बार रोटेशन होगी 3 टाइम्स. अगर यहाँ पे e रेस पावर 5 ये होता तो कितनी टाइम्स रोटेशन होगी, उस हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए. आंसर विल बी 1 इज द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम. चलिए लुक एट दिस अनदर वन. Z is a circle with the center is radius 3. फाइन. तो आपका फंक्शन क्या है जेड स्क्वायर ई रेस टू पावर जेड माइनस ई रेस टू पावर माइनस जेड. सबसे पहले देखिए क्या कोई ऐसी टर्म आपके दिमाग में आती है जिसमें ये टर्म हो. यस, इट्स अ साइन हाइपरबोलिक जेड. व्हाट इज अ साइन हाइपरबोलिक, ई रेस टू पावर जेड ई रेस टू पावर माइनस जेड ओवर 2. सो आई कैन राइट दिस नंबर इज 1 ओवर 2 जेड स्क्वायर साइन hyperbolic z. Is it okay? Now you can start with the expansion series. What is the sine hyperbolic z? जो साइन की सीरीज होती है, what is the sine of z? z minus z cube over 3 factorial, z की power 5 over 5 factorial and so on. Hyperbolic will be, you can take an all as the positive number plus z raised to power 5 over 5 factorial and so on. Again you can see the sine hyperbolic is the denominator. You can take the first quantity to be 1. So that number is z square over 3 factorial and so on. So now you can take the reciprocal sine hyperbolic z 1 over z. ये पावर हो जाएगी आपकी -1. So what is the series of the 1 plus x? 1 minus x plus x square minus x cube and so on. So 1 minus z square over 3 factorial, z raised to power 5 over 5 factorial and so on plus whole square and so on. Now you can multiply this quantity by 2 times z square, 2 times z square. Fine.
Now can you find the coefficient of 1/z? So z क्यूब, तो यहाँ से z स्केयर का कोफिशिएंट बनेगा, तो z स्केयर का कोफिशिएंट कितना है आपका, एक तो पहले तो 1/2 बाहर हो गया, इसका कोफिशिएंट कितना है -1/, इसमें तो कोई स्केयर क्वांटिटी नहीं आएगी बिकॉज दिस नंबर इज अ स्केयर, तो मिनिमम पावर इज 4, सो दैट विल बी हियर। तो आपका आंसर कितना हो गया 2 पाई आयोटा, तो ये कितना नंबर बन गया -1/12। So answer will be pi iota divided by -6 is the correct answer. बच्चों मैं बार बार कह रहा हूँ you must use this lecture residue of the special function. You can listen this lecture again and again. You will get the more confidence in the examination hall. Okay, look at this another one. F is e raised to power z into e raised to power 1/z. Now I can expand the series 1 plus z plus z square over 2 factorial, z cube over 3 factorial, and so on. E raised to power 1/z is 1/z plus, sorry, e raised to power x, first quantity is 1 plus z square into 2 factorial plus z cube into 3 factorial and so on. Now your target is to find the residue. Residue means coefficient of 1/z minus 0, that is a z. So your target is to find the coefficient of 1/z. So can you find the coefficient of 1/z? इस 1 के साथ coefficient क्या बनेगा 1, इस z के साथ coefficient क्या बनेगा this number 1/2 factorial, z square के साथ z cube, so that will be 1/2 factorial 3 factorial, z cube के साथ 4 factorial, so that will be 4 factorial 3 factorial and so on. So you can see I can write this number is also 1 factorial, so that will be summation of, if I write in terms of the L factorial, L plus 1 factorial, where factorial start from the 2 to infinity, sorry, it's not a factorial, so factorial is a C is my right answer of the problem. हमेशा याद रखिए जब भी एक्सपोनेंशियल, जब भी स्पेशल फंक्शन दिखाई दे, ऑलवेज स्टार्ट विद द एक्सपेंड द सीरीज. Okay, look at this one. F is analytic function of the simple pole at the 1. What does the meaning of the simple pole? That means z minus 1 की पावर कितनी होगी simple, simple means power 1. Fine. Is a double pole at the point 2. Double pole means इसकी पावर मैक्सिमम आपकी 2 होगी. Is it okay? ये क्या दिया हुआ है रेजिड्यू, इसका मतलब इसकी वैल्यू आपकी 1 है और इसका रेजिड्यू कितना दिया हुआ है -2. इज इट ओके? और तो नहीं कुछ कहा? फाइन. अब ये पावर 2 है, इट मे बी पॉसिबल, तो z -2 का कोई एक कोफिशिएंट हो सकता है प्लस कुछ अदर टर्म्स हो. क्लियर? सबसे पहले यही ऑप्शन चेक कर लेते हैं. z -1 की पावर 1, फाइन. z -2 का होल स्क्वायर इज 1. आपको कितना चाहिए -2, सो ए ऑप्शन कैंसिल. z -2, sorry is a pole, it will be the -2. The residue, this number is my -2, this number can be of the anything. Okay, so sorry, the first option is not cancel because z -2 is my -2, fine. Z -2 is -2 is 1, fine. Z -2, fine. This is the +2, but we needed a -2, so this option is cancelled. Now look at that. F of 0 is 0. F is bounded, but clearly say this number is not a bounded. As z approaches infinity is not a bounded. Fine. ये भी clear हो गया. अब जैसे ये bounded है, now you can see the f of 0 is 0. Firstly, we can check about the first term. It's a -1 +1 plus 5/4. Clearly say which is not 0. So C option is also cancelled. The only option left behind is B is the right answer. And you can see this number is 0 or not. -1 +1 plus 1/4. Yes, this is my 0. Also f of 3 is my -3/4, that also satisfied. B is my right answer of the problem. Let gamma is a circle of this case. Find the integrations. So once you can see the integration, your target is to find the residue. Fine. So denominator को 0 करते हैं, poles निकालते हैं. Pole will be the 1 and 2 iota. But clearly say what is the absolute value of that 2 iota. If you substitute that 2 iota,
which is 4 which is greater than of 3/2, that means this is lies outside. तो आपको क्या करना है, 1 के ऊपर निकालना है, and 1 is my simple pole. तो सिंपल पोल में आपको 2 पाई सी इज बेसिकली माई रेजिड्यू एट द पॉइंट 1. तो कैसे करोगे, इस 1 को छोड़ दो, बाकी में आयोटा की वैल्यू 1 फिल कर दो. सो इट्स ई रेज़ टू पावर आयोटा 1 minus 2 iota square, and your target is to find the modulus of c. So that will be e raised to power and 1 minus 2 iota square. The numerator is my 1. What is the denominator? What is the x plus iota y square? So that will be x square. Sorry, the modulus of x plus iota y is x square plus y square divided x square plus y square. So 1 plus 4, 1 over 5 is the right answer of the problem. So D is my correct answer. सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ रेजिड्यू के ऊपर फोकस करना, ऑल दिस. नाउ यू कैन सी दिस द रिसेंट ईयर पेपर. फाइन, अभी आप सब 2025 में हो. नाउ यू कैन सी द रिसेंट ईयर पेपर. हाउ यू कैन सॉल्व दैट? Firstly, you can see the function is z into z minus 2. Can you find the poles? Pole is my 0 and 2, and you can see both are my simple pole. Fine. अब देखते हैं इसमें से कौन सा इसमें लाई करता है. Let's start with that. First case, when theta is 0, the value of this will be 1. When theta is pi by 2, this number is e raised to power iota pi, that is minus 1. So that means your first circle is lies between 0 and 1, minus 1 to 1. When it is pi by 2, this number will be e raised to power iota, that will be 1 minus 1 is 0. When it is 3 pi by 2, e raised to power, sorry, it's a minus of 2. It is not, it's a minus 1. When it is 3 pi by 2, then it is my 3 of iota pi. So that is again 1 minus 2 is, so that is a constant value. The second number is z is equal to minus 1. The third number is when it is 3 pi by 2, it is number is my minus 1. When it is 2 pi, this number is my plus 1. That means it lies between minus 1 to plus 1. So clearly say 2 lies outside the circle. Fine. So that means z is equal to 0 is a simple pole. तो आप सारा आंसर इसमें फिल कर दो. तो आपका रेजिड्यू कितना हो गया? रेजिड्यू विल बी 1 ओवर माइनस हाफ, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन करना है. सो आंसर विल बी मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आयोटा. तो देखिए कितने सेकंड लगे आपको इस क्वेश्चन को एग्जामिनेशन में सॉल्व करने के लिए. कोई और मेथड की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ मेरी वीडियोस पे रिस्ट्रिक्ट रहिए. आपका नेट गेट कुछ भी एग्जामिनेशन है तुरंत क्वालिफाई होगा. Okay, look at this next one. F is analytic function except at the simple pole. F कैसा हो सकता है? सिंपल पोल z, तो इसका मतलब इसकी पावर 1 है. ये कितनी वैल्यू है ये हमें नहीं मालूम. फाइन. g is my analytic function. So can you choose any of the analytic function? You can choose analytic function is a constant function. You can choose as a cos of z. You may use as a sine of z. You may choose any of the polynomial, but the easiest way is I can choose is my 1. Fine. So if I choose g is my 1, can you find the answer of this? Residue 0 over f, that is my 1. So now you can see if g is my 1, g dash is my 0, which is not equal to 1. तो ये ऑप्शन तो कट गया आपका. g of 0 1 satisfied. यहाँ पे g is a 1, so both are same. Now what is the f? F may be 1 over z. I can choose this number, any number. I can choose as a minus 1 over z, or I can choose as a 2 over z, or I can use as a 100 over z. Fine. So let's say if I choose this is my 2 over z. So what is the answer of this case? It will be 2, which is not equal to 1. That option is cancelled. Similarly for this case, this is my 2, which is not equal to 1. That option is also cancelled. A is the only option which is left behind in the problem. देखो कितना आपको समय लग रहा है. कमेंट करके जरूर बताइए कि कितना आपको हेल्पफुल है और कितने लोगों ने कंसेप्ट से क्वालिफाई करा. चलिए नेक्स्ट वन. लुक एट दैट. दिस इज गेट 2025 मैथमेटिक्स. नाउ यू कैन एनालाइज दैट हाउ यू कैन सॉल्व इट इन ए क्विकली. अगेन दिस इज माय स्पेशल फंक्शन. फाइन. So can you solve it quickly?
How you can solve it quickly? First of all, I can write for you here sin z 1 minus cos of z cube. Is it okay? So पहले सीरीज से एक्सपेंड करते हैं cos z की. What is the series of the cos z cube? 1 minus z. Fine. What is the cos of a? This is 1 minus a square over 2 factorial, a4 over 4 factorial, and so on. So that will be a square divided by 2 factorial plus is a power 4 divided by 4 factorial, and so on. So that will be 1 minus, or you can say what is the value of the 1 minus cos z cube denominator. This number will be my z raised to power 6 over 2 factorial, z raised to power 12 over 4 factorial, and so on. क्योंकि ये नंबर आपका डिनोमिनेटर में है तो आपका टारगेट क्या है, पहली टर्म को क्या बनाना है, 1. सो यू कैन टेक z स्क्वायर ओवर 2 एज ए कॉमन, 1 plus z raised to power 6 into is a 24, that's a 12 plus so on. Fine. Now you can take the reciprocal, 1 minus cos z cube, that number will be twice of z raised to power 6. अब यहाँ पे आपके पास फिर से वही 1 plus x raised to power minus 1, so I can write as minus, fine, and so on. Is it okay? अब इसके साथ आपको क्या चाहिए, sin of z. So I can write as the sin of z series, z plus z minus z cube over 3 factorial, z raised to power 5 over 5 factorial, and so on. Is it okay? यहाँ तक कोई डाउट? नाउ अब आपका क्या रह गया, रेजिड्यू निकालना सिंपल. तो रेजिड्यू क्या बताया मैंने आपको, कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 over z का. तो 1 over z का कोफिशिएंट कब बनेगा, it is z raised to power 6. So that means I can try to look at the terms which involvement of the z raised to power 5. तो इस 1 के साथ 1 over 5 factorial. फाइन, ये 2 आपका बाहर है. इस z की पावर 6 के साथ कोई नहीं बनेगा, नेक्स्ट भी कोई नहीं बनेगा. So that will be 2 over 120. So that will be 1 over 60. That is a residue I. So इसका मतलब इसको 2 pi iota से मल्टीप्लाई करेंगे. This number is 1 over 60. Now you can multiply here. That answer will be 2 is the right. Fine. Just try to elaborate it with the help of the expansion series and you can get the answer in a reasonable time. बताइए क्या आपने गेट 2025 में इसी तरह से एग्जाम पेपर में सॉल्व करा था, और अगर आपको ये मेथड पहले नहीं मालूम था, अगेन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. आई विल टेल यू द मोर न्यू मेथड्स आल्सो फॉर द वेरियस टॉपिक्स. आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स. The residue of the functions at its pole, residue of the function at its pole is equal to 1. Now residue is given to you. Can you find the pole? The pole is minus 1 minus 1. That is my double pole. Fine. So once it is a pole of order greater than 1, so you can start with, in this case m is my 2, m is my order of the pole. दो बार आया ना आपका -1 तो ऑर्डर 2 हो गया. सो दैट विल बी m minus 1 factorial, m minus 1th डेरिवेटिव, फाइन, इंटू z माइनस पोल आपका क्या है -1, सो z plus 1 स्क्वायर ऑफ एफ जेड. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द रेजिड्यू. ये आपको किसके इक्वल दिया हुआ है, 1 एज द लिमिट z अप्रोचेस पोल. तो आप स्टार्ट कर लेते हैं. लिमिट z approaches -1, m is my 2, 1 factorial is 1, that is the first derivative of z plus 1 whole square will be cancelled, z square plus alpha z. So can you find the value, 2z plus alpha. Now you can substitute the limit, z approaches -1, minus of 2 plus alpha is 1, alpha will be my 3 is the right answer of the problem. This is a lecture of the double pole. That means you can watch the second lecture, residue of the function of the simple of the pole of order में m. बच्चों दिमाग में रखिए, अगर आपने ये चारों लेक्चर अच्छे से सुने हुए हो तो आपको इन PY क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं है. मैंने सारे शॉर्टकट ट्रिक्स ऑलरेडी इस PY थ्योरी लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ. ओके, फाइंड द रेजिड्यू ऑफ द फंक्शंस. सो अगेन यू कैन सी क्या शॉर्टकट ट्रिक्स मैंने बताई थी आपको. इट्स अ B of Z. सो रेजिड्यू किस में होना, रेजिड्यू क्या होगा आपका
ए ओवर बी, बट यहाँ पे देखिए जीरो नहीं है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, हर तरफ जेड को किसकी फॉर्म में लिखना है, जेड माइनस पाई में। तो पहले इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, उसके बाद इसको लिखते हैं माइनस पाई प्लस पाई। फाइन। तो देखिए इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, कोट ऑफ पाई प्लस थीटा, तो किस क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड में, थर्ड इज कोस पॉजिटिव, इट्स कॉट ऑफ थीटा, सो दिस नंबर विल बी माई कॉट ऑफ z minus pi. Now you can compare them. This is basically z minus z naught. So a आपका कितना है इसका, a will be 1, b will be 1. So residue is again 1 is the right. Is it okay? Now you can see it's a very simple way you can get the answer. Okay, look at this one. Is a GATE 2019. F is a non-zero and analytic at the all point. You may choose F is a constant. You may choose as a cos, you may choose as a sine, you may choose as the polynomial. But the easiest way I can choose is f is my 1. Fine. Then capital F will be pi, f will be my 1 into cot of pi z. Fine. थोड़ा मैं और आसान कर लूँ. What I can do, instead of taking as a 1, I can choose f is 1 over pi, so that when I substitute here, this pi will be cancel out, or otherwise there is no issue. Okay, fine. मैंने आपको पहले ही शॉर्टकट ट्रिक्स बता दी है, so that will be f cot of pi z. So can you find the residue of the f, residue of the capital F? फिर से यही रूल लगाइए बच्चे. What is the a and b? A will be pi, b will be pi, so residue will be 1. Now you can see the answer. Whenever f is 1, the first answer will be 1 into pi is pi, but आपको तो आंसर 1 चाहिए. f of 1 is 1, satisfied. This will be 1 over pi, cancel. Derivative of the 1 is 0, so all these three options cancel. The left option is B is the right answer. आई थिंक ये सबको मालूम होगा. अगर आपको एक काउंटर एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हो तो आपको ऑप्शंस को डिस्कार्ड करना है. यू कैन ओनली डिस्कार्ड द ऑप्शन, बट यू कैन नेवर से दिस द राइट आंसर. नाउ इन दिस एग्जाम्पल वी सी ऑल द अदर ऑप्शंस आर कैंसल आउट. इसकी वजह से हमारा बी ऑप्शन जो लेफ्ट बच गया, दैट इज द राइट आंसर. देखिए कितने सेकंड लगे, मेरे को नहीं लगता कि 10 से 15 सेकंड से ज्यादा आपको समय चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. चलिए लुक एट दैट. एफ इज माई जेड प्लस 1 ओवर जेड. आप इसको 1 प्लस ये लिख सकता हूं. इसका पोल क्या आएगा, पोल विल बी 0, और 0 आपका इस सर्कल में लाइक कर रहा है. तो कैन यू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ 1 ओवर जेड, वो क्या हो जाएगा आपका रेजिड्यू. फाइंड कोफिशिएंट इज माई 1, सो आपका इंटीग्रेशन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई 2 पाई आयोटा से. सो 2 पाई आयोटा इज द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम. कितना आसान है. फाइन. दो लाइंस लिख रहे हो आप मैक्सिमम. नाउ यू कैन सी दिस द mth सेट. अगेन इस साइन ऑफ जेड. अगेन इसका पहले आप निकाल लेते हैं, साइन की सीरीज एक्सपेंड कर देते हैं. जेड माइनस जेड क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, जेड की पावर 5 ओवर 5 फैक्टोरियल माइनस सॉन. क्योंकि ये साइन जेड आपका न्यूमिनेटर में है, तो आपको यहाँ 1 बनाने की कोई जरूरत नहीं है. अगर ये साइन डिनोमिनेटर में होगा, देन ओनली यू कैन मेक द फर्स्ट वैल्यू टू बी द 1. तो आप f की वैल्यू निकाल सकते हो. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द साइन जेड ओवर जेड. सो 1 माइनस जेड स्क्वायर ओवर 3 फैक्टोरियल, जेड की पावर 4 ओवर 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. सो कैन यू फाइंड द रेजिड्यू. व्हाट इज द रेजिड्यू, कोफिशिएंट ऑफ 1 over z. So can you find the coefficient of the 1 over z in this series? There is no coefficient. Residue is my 0. So answer will be 2 pi iota into 0. So B is my right answer of the problem. Okay, look at this another one. Find the value. तो इसको मैं पहले फैक्टर बना लेता हूँ, z minus 1, z plus 1. Fine. Over the circle C. सबसे पहले पोल निकाल लेते हैं. पोल्स आर माई -1 and +1. You can see -1 and +1 both are lies in between them, because दोनों का मॉडुलस लेस देन 4 है. So both are lies inside the circle. Moreover, you can also see both are lies, both are my simple pole.
यही तो बताया ना आपको, क्योंकि इसकी वैल्यू एक बार है। तो सिंपल पोल है तो रेजिड्यू 1 पे कैसे निकालोगे? तो आपका टारगेट है रेजिड्यू एट 1 पे निकालना, रेजिड्यू एट -1 पे। तो सिंपल पोल के लिए क्या बताया, जब भी आपका 1 है तो इसको छोड़ दीजिए, तो बाकी जो बच गया उसमें फिल कर दो जेड की वैल्यू 1, सो द आंसर विल बी हाफ। जब आपको -1 के ऊपर निकालना है तो इसको छोड़ दीजिए और यहाँ पे फिल कर दीजिए, सो दैट विल बी 1/। सो टोटल रेजिड्यू कितना हो गया आपका, हाफ। दोनों को ऐड कर दो, यू कैन ऐड देम, आंसर विल बी 0। सो मल्टीप्लाई विल बी टू, आंसर कितना हो गया 2 पाई आयोटा इंटू रेजिड्यू, आंसर विल बी 0 इज द करेक्ट आंसर। ओके, लुक एट द नेक्स्ट वन। फिर से इसको इसी तरह से करते हैं, जेड स्केयर, इसको पहले फैक्टर बना लेते हैं, 2 माइनस जेड, 2 प्लस जेड। कैन यू फाइंड द पोल? पोल्स आर जेड इज इक्वल टू 2, जेड इज इक्वल टू -2। तो आप इसको देखते हैं कौन सा पोल इस सर्कल के बीच में लाई करता है। तो कैसे चेक करेंगे, पहले 2 फिल करते हैं, सो 3 विच इज ग्रेटर देन 2, तो ये वाला पोल तो आपका नहीं लाइक करेगा। -2 इज -1, yes, which is less than of 2, satisfied only this pole and it is my simple pole, fine। तो -2 किसके corresponding आएगा, this value, तो you can skip the quantity and your answer will be -2 square, 2 minus minus plus, so 4/4 is 1, answer will be 2 pi iota into 1, 2 pi iota is the right answer of the problem, fine। लेकिन एक बार याद रखना, अगर आपको मान लो z इज टू 2 के ऊपर निकालना होता तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते। इसके लिए आपको क्या करना होगा, क्योंकि इसका कोफिशिएंट आपका 1 नहीं है, तो पहले इसको आप माइनस कॉमन निकालिए, z-2 z+2, ओके। देन आप इस z इज 2 के लिए इस, नहीं तो माइनस का डिफरेंस आ जाएगा आपका आंसर, फाइन। So now for this particular example of the -2, answer is C is the correct answer. ओके, लुक एट दिस अनदर वन। फिर से देखिए एक्सपोनेंशियल है, कोई सीरीज फिर से बताइए ये कौन सी सीरीज होती है। इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूं, दैट विल बी माई साइन ऑफ हाइपरबोलिक जेड, तो एफ विल बी ट्वाइस जेड स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक जेड। तो एक्सपेंड कर देते हैं सीरीज को, सो दैट विल बी जेड, हाइपरबोलिक है तो सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, z³ / 3 फैक्टोरियल, z⁵ फैक्टोरियल एंड सॉन, फाइन। और अब आपका टारगेट क्या है, जीरोस, एफ का 0, f0, एफ का 0 निकालना। तो कैसे निकालेंगे, इसकी हाईएस्ट, इसकी इसको 1 बना लो, चाहे z³ 1 प्लस z²/3 फैक्टोरियल एंड सॉन। सो क्लियरली से इसका ऑर्डर कितना हो गया, कोफिशिएंट की पावर कितनी है 3, सो ऑर्डर इज माई 3। सो z इज 0 इज द ऑर्डर 3, ऑर्डर 2 ये ऑप्शन कैंसल, ऑर्डर 3 इज फाइन, ऑर्डर 2 कैंसल, इज इट फाइन। नाउ लुक एट द डिनोमिनेटर, g आपका क्या बन गया, z² डिवाइडेड बाय 2 साइन हाइपरबोलिक z। अब बिकॉज साइन हाइपरबोलिक डिनोमिनेटर में है, दिस इज माई साइन हाइपरबोलिक, सो आई कैन राइट z²/2 is outside. I can make the firstly z is outside, make them as a 1 because ये denominator में लिखा हुआ है, then it is z²/3 factorial and so on. So I can write this is 1/z, इसकी पावर नेगेटिव कर देंगे, फाइन। तो नेगेटिव में आप एक्सपेंशन लगा दीजिए, 1 माइनस z²/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ये कितना बन गया, z/2 1 माइनस z²/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो अब इसका भी 0 ही निकालना है और पोल निकालना है। तो देखिए g आपका क्या बन गया, g इज माई दिस एक्सपेंशन, ओके। तो क्लियरली से देयर इज नो पोल, पोल तो कोई बचा ही नहीं डिनोमिनेटर में, तो g हैज ए पोल, ये कैंसिल हो जाएगा पहले ही, g हैज ए पोल ऑफ ऑर्डर 1, ये भी कैंसिल हो गया। g का 0 का ऑर्डर कितना है, देखिए इसका कोफिशिएंट 1 मिल गया ना आपको 1, सो पावर इज 1, सो दैट इज C इज द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। और देखिए मार्च 2025 वेरी रिसेंट ईयर पेपर सोल्यूशन है और 3 लाइन में आपको आंसर्स प्रोवाइड। चलिए लुक एट दिस नेक्स्ट वन, P and Q आर द 2 कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल्स A and B देन द रेजिड्यू। फिर कोफिशिएंट, रेजिड्यू में क्या करेंगे हम, कोफिशिएंट ढूंढ लेंगे 1/z का। सबसे पहले आसान कर लेते हैं, n की वैल्यू को 1 ले लेता हूँ, तो आपका P क्या बन गया, P विल बी A0
प्लस A1Z, Q क्या बन जाएगा, B1 ऑफ Z। फाइन। अब आप P ओवर Q कितना हो गया आपका, A0 over B1Z plus A1 over B1. Now your target is to find the coefficient of 1 over Z. So residue will be A0 over B1. So A0 over B1. A is my right answer of the problem. आपने अभी तक देखा होगा जितने भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, देखिए दो दो लाइन तीन तीन लाइन से ज़्यादा मैं कहीं नहीं लिख रहा। और मैं यही आपसे भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि जब आप प्रैक्टिस करें, सिर्फ इन वीडियोस को देखिए मत, इन वीडियोस की हेल्प से आप अदर क्वेश्चन भी इन्हीं मेथड से सॉल्व करिए। एक एडवाइस दे रहा हूँ, समटाइम स्टूडेंट क्या होता है, वीडियोस को देख लेते हैं लेकिन जब प्रैक्टिस करते हैं तो कोई और मेथड से प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, फिर तो फायदा नहीं है ना बच्चे आपका। एक ही मेथड पे बाउंड रहिए आप, चाहे तो आप मेरे मेथड पे, मेरी शॉर्टकट ट्रिक्स पे रहिए, चाहे आप अदर ट्यूटोरियल आपका जो भी टीचर आप उसके बाउंड रहिए, लेकिन एक ही मेथड से फॉलो करिए और एंड तक बिफोर द एग्जामिनेशन और आफ्टर द एग्जामिनेशन एक ही मेथड से फॉलो करिए। दिस इज माई प्योर एडवाइस टू यू, दिस इज माई प्योर क्रिस्टल क्लियर एडवाइस, क्लियर कट एडवाइस टू यू। फाइन। सिर्फ एक ही टीचर को फॉलो करिए। अगर आप एक से ज़्यादा टीचर को फॉलो करते हो तो एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाओगे। मेरा मेथड अलग है पढ़ाने का, किसी और का अलग है, लेकिन आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आपको मेरे मेथड अच्छे लग रहे हैं तो इन्हीं मेथड से ही कोई भी क्वेश्चन उठाइए, कोई भी बुक उठाइए, उसको सॉल्व करिए, यू विल सी वेदर यू विल गेट द राइट आंसर और नो। चलिए अगला चलते हैं, CSIR नेट जून का है, तो पहले डिनोमिनेटर को ओपन कर लेते हैं, Z-1 Z+1। आप इसमें एक्सपेंशन भी कर सकते हो आप, लेकिन वो एक्सपेंशन तब करिए जब डिनोमिनेटर में अकेला Z हो। यहाँ तो दो दो टर्म्स है ना, तो कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको। पोल कितना हो गया इसका, 1 -1। सर्कल क्या आपका 1 - Z इज इक्वल टू 1। तो पहले देख लेते हैं कौन सा पोल इसके अंदर लाई करता है। जैसे 1 फिल करा, 0 विच इज लेस देन 1 सेटिस्फाइड, यस दिस लाइज। -1 फिल करेंगे, दैट इज 2 विच इज ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स दिस लाइज आउटसाइड। तो सिर्फ एक ही निकालना है एंड दिस इज माई सिंपल पोल। तो Z इज टू 1 किसके कोरस्पॉन्डिंग आया था, इसके कोरस्पॉन्डिंग, इसको छोड़ दीजिए और बाकी का आंसर फिल कर दो। तो रेजिड्यू कितना हो गया, e⁻1 डिवाइडेड बाय 2। तो आपका इंटीग्रेशन है, फाइनल आंसर क्या हो गया, 2 पाई आयोटा इंटू e/2 पाई आयोटा e, दैट इज द सेकेंड इज द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। मेरे को नहीं लगता कि अभी भी आपको ना समझ आ रहा हो। मैं वो समझ जाऊंगा जितने आपने लाइक और जितने आपने कमेंट्स करे, ओके, और जितने सब्सक्राइबर दिए मेरे को, इससे मैं समझ आऊंगा कि आपको भी वीडियोस कितनी अच्छी लग रही है और कितने आप समझ पा रहे हो। चलिए नेक्स्ट वन करते हैं, इट्स अ लॉगरिथम सीरीज। हाँ इट्स अ लॉग सीरीज, इसको थोड़ा ध्यान से करना है। कोफिशिएंट ऑफ दी 1/z, इसका मतलब आपसे रेजिड्यू ही पूछ रहा है, वो स्टेटमेंट बदल दी गई है, दे आर टॉकिंग अबाउट दी रेजिड्यू ओनली। सबसे पहले मैं पहली बात तो all of you know what is the series of the 1 plus log of 1 plus z? Yes, anybody? It will be z minus z square over 2 plus z cube over 3 and so on. Is it okay? तो इसका मतलब आपको इस सीरीज को पहले 1 प्लस की फॉर्म में लिखना है, यही आपका टारगेट है। क्लियर? अगर मैं इसमें -1 +1 करता हूँ, आपको z भी बनाना है। क्लियर? तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से z कॉमन ले लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने z कॉमन लिया तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ। फाइन। अब मैं यहाँ पे सीरीज को एक्सपेंड कर देता हूँ, 1 प्लस व्हाट इज द सीरीज ऑफ द 1 माइनस x। माइनस में क्या होता है, ऑल आर माई पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एंड सो ऑन। सो 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब एंड सो ऑन। अब आप यहाँ पे फिल करेंगे तो आपका ये लॉगरिथम सीरीज क्या बन गई, log ऑफ 1 प्लस जेड, सॉरी पहले तो 1 प्लस जेड भी तो बनाना ना आपको। तो 1 प्लस जेड कैसे बनाएंगे आप इसे, ये अगर मेरा a है तो ये वैल्यू, हाँ तो ये क्या बन गया आपका, log ऑफ 1 प्लस 1 ओवर जेड प्लस 1 ओवर जेड स्क्वायर एंड सो ऑन। तो अब आपका देखिए ये एक तरह से यही वाली चीज़ काम कर रही है ना आपके दिमाग में। तो आप कोफिशिएंट ऑफ 1/z निकालना बेसिकली। तो क्या होगा, 1 ओवर जेड प्लस 1 ओवर जेड स्क्वायर, दिस इज द माइनस, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसका होल क्यूब हो जाएगा एंड सो ऑन। तो क्या आप इसका रेजिड्यू निकाल सकते हो, मतलब कोफिशिएंट ऑफ
1 ओवर जेड, इसमें तो कोई भी टर्म आएगी नहीं जो 1 ओवर जेड होगी, बिकॉज स्केयर बन रहा है, क्यूब बन रहा है, तो कोफिशिएंट ऑफ 1 बाई जेड कितना है आपका, 1 इज द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। कितना आसान है, आपको एक्सपेंशंस पता होनी चाहिए। यू कैन यूज, अगर आपको नहीं मालूम, यू कैन यूज एज दी टेलर सीरीज। फाइन बच्चों, मैं आपको फिर से एडवाइस दे रहा हूँ, एक और एडवाइस दे रहा हूँ, आप इस कम्प्लेक्स एनालिसिस की थ्योरी वाली प्लेलिस्ट को पूरा कंप्लीट देखिए। देखिए आपके पास कंप्लीट सीरीज है जिसमें हर क्वेश्चन, हर एग्जांपल्स काफ़ी शॉर्टकट ट्रिक से आपको एक्सप्लेन करी, लाइक टेलर सीरीज, लॉरेंट सीरीज, maximum modular principle, examples of the maximum modular principle, and many more in this playlist. चलिए look at this one. The sum of the residues at all the poles, देखिए cot of pi z divided by, फाइन, अगर तो आप इसको नॉर्मली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे दैट विल टेक अराउंड द 10 मिनट्स, बट रिमेंबर माय शॉर्टकट ट्रिक्स। अगर आप इसको नॉर्मली करोगे, फर्स्ट मेथड, हाउ यू कैन सॉल्व दैट, फर्स्टली यू कैन राइट एज ए cos over sin, fine, then you can find the pole will be z is equal to minus a, and corresponding to the sign of pi z, 0 is n pi, so z will be my plus minus n, और उसके बाद सभी के ऊपर पोल्स निकालोगे, but there is no need. What is the shortcut tricks? You can see it's a cot. What is the residue? Corresponding the function of the cot, a cot of bz. What is the residue is a over b, so can you find the residue corresponding to the cot of z? देखिए यहाँ पे रेजिड्यू आपके दो बनेंगे, वन इज अ रेजिड्यू, दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग टू द cot of pi z, प्लस रेजिड्यू, दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग टू द z प्लस a स्क्वायर। तो क्या आप इसका आंसर निकाल सकते हो a ओवर b से? a कितना आपका 1, सो आंसर विल बी 1 ओवर पाई। इज इट ओके? तो सबसे पहले 1 ओवर पाई, दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव कैंसिल, ये तो समझ में आ गया। इज इट ओके नाउ? तो इसका मतलब इसका आंसर 1 ओवर पाई इंटू समथिंग आएगा, वो आपके पास ये क्वांटिटी दोनों सेम है। अब रेजिड्यू इसके ऊपर निकालते हैं, रेजिड्यू माइनस ए विच इज माई डबल पोल, फाइन। जब भी आपका डबल पोल मिल गया, लेट मी क्लियर दिस, तो आपका क्या है रेजिड्यू का फॉर्मूला, रेजिड्यू विल बी लिमिट जेड अप्रोचेस पोल, तो एम की वैल्यू आपकी क्या है 2, तो 1 ओवर 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ z प्लस ए होल स्क्वायर इंटू एफ जेड, तो z प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी कोट ऑफ पाई जेड। सो कैन यू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द कोट, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर पाई जेड इंटू पाई, फाइन। नाउ यू कैन सब्सटीट्यूट द लिमिट एज z अप्रोचेस a, तो कितना आ जाएगा माइनस पाई कोसेकेंट स्क्वायर पाई ऑफ ए, सो दैट्स अ माइनस ऑफ पाई, लेकिन यहाँ पे प्लस पाई है, माइनस पाई कोसेकेंट स्क्वायर, ए इज द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। हमेशा बच्चों देखिए ये सेम शॉर्टकट ट्रिक्स मैं बार बार यूज करता जा रहा हूँ, चाहे वो गेट है, चाहे वो नेट है, चाहे वो कोई भी एग्जामिनेशन। चलिए लुक एट दिस वन, द वैल्यू इज ई रेज़ टू पावर जेड, जेड प्लस 1 क्यूब, ठीक है। यहाँ पे एक्सपेंशन मत करिए, बिकॉज एक्सपेंशन का प्रेफरेंस तब है जब नीचे अकेला जेड क्यूब होता, लेकिन यहाँ जेड प्लस 1 है, फाइन। तो आप क्या करिए पहले, ओके मैं दो मेथड बताता हूँ, चलो पहले एक्सपेंशन करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, इसी टर्म को भी जेड प्लस 1 माइनस 1 सेम बना लें, फाइन। ई रेस्ट पावर माइनस 1 इज आउटसाइड, दिस इज द फर्स्ट मेथड। नाउ यू कैन एक्सपैंड द सीरीज, इट्स अ 1 प्लस एक्स प्लस x square by 2 factorial plus so on, fine. Now the residue will be coefficient of, अब इस केस में क्या आपका 1 over z plus 1, so can you find the coefficient of the 1 over z plus, तो ये क्यूब है तो यहाँ पावर 4 होनी चाहिए, नहीं सॉरी पावर 2 होनी चाहिए, तो कितना आएगा e की पावर -1 ओवर 2 फैक्टोरियल, और इंटीग्रेशन में क्या आंसर हो जाएगा 2 पाई आयोटा e रेज़ टू पावर -1 ओवर 2 फैक्टोरियल, so pi iota over e, b is my right answer of the problem। अगर आप इसको फर्स्ट मेथड से सॉल्व करते हो, आपको डिनोमिनेटर को भी सेम बना देना ऊपर,
इज इट ओके? सेकेंड मेथड से सॉल्व करते हैं अब आपको। सेकेंड मेथड से आप कैसे सॉल्व करेंगे? आप पोल निकाल लेते हैं इसका, तो इस केस में इसकी जरूरत नहीं है। देन यू कैन फाइंड द पोल। पोल कितना हो गया आपका? -1 -1 -1 एंड ऑल सेटिस्फाइड दिस कंडीशंस, सो दैट मीन्स इट इज माई ट्रिपल पोल, सो दैट मीन्स m is 3। सो आपका रेजिड्यू क्या हो गया? लिमिट z अप्रोचेस 3 - 1 फैक्टोरियल सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ z प्लस 1 क्यूब इंटू एफ जेड। तो आप सब्सटीट्यूशन कर देते हैं, 1/2 फैक्टोरियल 2 सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ z प्लस 1 क्यूब करेंगे तो e की पावर z। फाइन, तो अब आप कर लीजिए इसका डेरिवेटिव, 2 टाइम्स सेम ही रह जाएगा, सो आंसर विल बी 1/2 e रेस्ट पावर -1, सो 1/2e। अब आपको इंटीग्रेशन करना है, यू कैन मल्टीप्लाई बाय द 2 पाई आयोटा, अगेन आंसर विल बी पाई आयोटा ओवर e is the right answer. Okay, look at this another one. Again z minus 1 z plus 1. What is the pole? Pole is z is equal to plus 1, z is equal to -1. Plus 1 lies inside the circle, -1 also lies inside the circle, and both are my simple pole. तो इसका मतलब मैं रेजिड्यू एक बार 1 पे निकाल लेता हूँ, फाइंड द रेजिड्यू एट -1। तो कितना हो जाएगा? 1 के लिए 1 कॉरस्पॉन्डिंग दिस केस है, इसको छोड़ दो, तो बाकी इस केस में फिल कर देते हैं 1/2। -1 के लिए ये वाला छोड़ देंगे, इसमें फिल कर देते हैं 1/-1/2। फाइन, बट रिमेंबर स्टूडेंट्स, दिस इज माई एंटी क्लॉकवाइज, बट दिस इज माई क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसका मतलब वेन एवर यू फाइंड द रेजिड्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू द -1, you have to multiply with the negative sign. So therefore residue corresponding to the clockwise direction will be, I can multiply with the negative sign. Fine. So इसका आंसर टोटल रेजिड्यू कितना हो गया आपका? भी टोटल रेजिड्यू विल बी हाफ, और दिस वैल्यू इज अगेन पॉजिटिव, इट विल बी 1। सो आपका फाइनल आंसर हो गया 2 पाई आयोटा इंटू 1 इज द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। देखिए, अगर इफ यू मिस टू मल्टीप्लाई विद नेगेटिव, देन योर टोटल रेजिड्यू विल बी 0 एंड देन यू कैन टेक द डी ऑप्शन, दैट इज अ रॉन्ग आंसर। फाइन, whenever it's a clockwise you can always multiply with the negative sign. If it's an anti-clockwise then it's a fine state. Okay, look at this another one. Okay, it's a court over divided by z minus iota square. फाइन, अगेन अगर कोट है तो इसका रेजिड्यू 1/पाई की फॉर्म का होना चाहिए, कोई भी आंसर 1/पाई की फॉर्म का नहीं है अपार्ट फ्रॉम दिस नंबर। फाइन, so that means the only option C is the right answer. Otherwise you can solve it, and let me know in the comment box whether you will get the answer C is the right answer or not. फाइन, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, अगर आपको कंफ्यूजन है थोड़ा सा मैं आपको कर देता हूँ। इसके कोरस्पॉन्डिंग रेजिड्यू निकाल लेते हैं, तो इसका मतलब दिस इज आयोटा एंड आयोटा। फाइन, तो आयोटा वेदर लाइज इन दिस, आयोटा क्या लिख सकते हो आप? x इज माई 0, y इज माई 1, यस 1 इज लेस देन 2, तो इसे डबल पोल, z इज आयोटा 1 फैक्टोरियल डेरिवेटिव into fz, so that will be first derivative of cot pi z. तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ कोट कितना आएगा? -पाई cosecant square pi z. Now you can substitute the limit is, so that will be sin square pi iota, and you know what is the value of the sine of iota z? It will be iota times sine hyperbolic z, so that will be minus, because यहाँ पे square लिखा हुआ है, so that will be iota square sine hyperbolic, iota square is -1, so it's a pi over, you can see. Fine, and corresponding to the sign you will get the answer is C. Okay, look at this again, I will tell you the two method. First method you can expand the series, but it's a z -2,
write the function in terms of z minus 2. So it's a minus minus plus, then it's a minus of 2 divided by z minus, fine. So it will be 1 over e square is outside. I can expand the series. 1 my what is the series of e raised to power x? 1 plus x square by 2 factorial and so on, but it is a negative, so it will be 1 minus x plus x square over 2 factorial and so on divided by z minus 2 square. So can you find the coefficient of 1 over z minus 2? So कहाँ से मिलेगा आपको? यहीं से तो मिलेगा ना आपको coefficient. So it is a negative and it is minus 1 over e square. Now your target is minus 1 over e square. Why? कहाँ गलती हुई है? Sorry, it is my 4. This number is my 4, not a square. This number is 4. Fine, this is my 4. तो आपको क्यूब से मिलेगा z minus 2 cube over 3 factorial. So that is the coefficient. So that will be 1 over 3 factorial into 1 over e square. So 1 over 6 into e square is the right answer. Second method, there is no need to expand it. Fine, you can find the pole. Pole is my 2 of order 4, power 4 है. So I can find the residue. Limit z approaches to 1 over 3 factorial, third derivative of z minus 2 raised to power 4 of f. So that will be 1 over 6. Third derivative of ये कितना जाएगा e की power minus z. So that will be minus plus 1 over 6. Can you find the third derivative of e raised to power minus z? It will be minus e raised to power minus z. So that is at the point z, limit is z is equal to 2. So जैसे z 2 fill करोगे माइनस, तो यहाँ कहीं गलती हुई है हमारी. लेट मी चेक, इसको चेक कर लेते हैं. दिस सी इज द राइट आंसर. फर्स्ट मेथड से दोबारा चेक कर लेते हैं. फाइन, कहाँ पे माइनस प्लस की गलती हुई है, इसको पहले एक्सपेंड कर लेते हैं. इट इज ई रेस्ट पावर माइनस 2 इज आउटसाइड, z माइनस 2 रेस्ट टू पावर 4 e. फाइन, तो इसको एक्सपेंड करें. e की पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, हाँ सॉरी माइनस एक्स क्यूब, फाइन, प्लस डिवाइडेड बाय z minus 2 raised to power 4. Now you can find the coefficient of z minus 2. तो ये माइनस भी तो आएगा ना साथ में. माइनस 1 over 3 factorial e raised to power minus 2 minus 1 over 6 e square. Yes, fourth is not the, C is my right answer of the problem. Okay, let gamma is a circle enclosing the origin and counter clockwise directions. तो पहले तो कोड की सीरीज को एक्सपेंड करते हैं. 1 माइनस जेड स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, जेड 4 ओवर 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. तो आपका एफ क्या बन गया, इसको जेड स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं. 1 से इट विल बी जेड स्क्वायर, इट इज जेड स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, जेड स्क्वायर ओवर 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. So can you find the coefficient of 1 over z? There is no term, so it's a 0. That means residue is my 0. So answer will be 2 pi iota into 0 is the right answer. Fine. एक और टिप्स दे रहा हूं. अगर आपको इसी क्वेश्चन का पोल पूछ लिया जाए, फाइंड दी पोल, तो क्या बताया मैंने अभी, इसकी डिग्री कितनी है. दैट मीन्स z इज टू 0 इज द पोल. ऑर्डर कितना है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2. सो पोल ऑफ ऑर्डर 2. और यहाँ पे काउंटर ओरिएंटेड क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अगर कुछ आंसर आता है तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं आप. इस तरह से मूव कर रहा है ना आपका ये क्लॉकवाइज. फाइन, अगर मान लो इसका आंसर 1 होता तो आंसर विल बी द 2 पाई आयोटा, बट यू हैव टू मल्टीप्लाई विद द नेगेटिव साइन. ओके, एफ इज एनालिटिक, जी इज एनालिटिक फंक्शंस एट ए. पहले तो ए को फिक्स कर लेते हैं 0. तो फंक्शन क्या बन गया आपका, एफ इज एनालिटिक, सॉरी जी इज माई एनालिटिक, G is analytic, F is a pole
ऑफ ऑर्डर k एट 0। इससे क्या मतलब हुआ कि z माइनस 0 की पावर कितनी है k, यहाँ पे कुछ एक टर्म हो सकती है। अगर g एनालिटिक है देन यू कैन चूज g इज माई कॉन्स्टेंट, g is my polynomial, g is my cosine, g is my sine. So the best way is I can choose g is my 1. Fine. Then इस पे देखिए क्या हो गया आपका रेजिड्यू f dash over f at the point z is equal to 0. Is it okay? यही है ना आपका। अब k की वैल्यू क्या होगी? इट कैन बी एनीथिंग। इफ आई चूज k is equal to 1 तो ये ऑलमोस्ट ऑप्शन सिमिलर जैसे हो जाएंगे। फाइन, बेटर आई कैन चूज द k is my 2। तो आपका f कैसा है फंक्शन जेड स्केयर, कोफिशिएंट कुछ भी हो, यहाँ 1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो लेट्स स्टार्ट विद दी 1 ओवर जेड स्केयर। तो आप इसमें सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए। अदरवाइज एफ डैश ओवर एफ में आप आर्गूमेंट प्रिंसिपल भी लगा सकते हो, बट एनी हाउ व्हाट इज एफ डैश? एफ डैश इज -2 ओवर जेड क्यूब, एफ इज 1 ओवर जेड स्केयर, सो इट विल बी -2 ओवर जेड। तो इसका 1 ओवर जेड का कोफिशिएंट कितना है? -2 इज द राइट आंसर। अब आप फिल करते हैं, g इज माई 1, k इज माई 2। तो ये तो आंसर आपका +2 बना, लेकिन हमें चाहिए -2। तो देखिए ये बन गया ना सही, ये 2 फैक्टोरियल इंटू जी, ये भी बन सकता है, सॉरी वी कांट करेक्ट दैम। ये तो गलत हो गया ना, k डैश, और यहाँ बेसिकली g ऑफ a होगा, k होगा अकेला, सो इट विल बी द -1/2 g ऑफ a। तो ये ऑप्शन भी कैंसिल होगा। अब k को 3 ले लेते हैं। फाइन, अगर k 3 होगा देन इट विल बी माई 3। फाइन, तो इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? 3 ओवर पावर 4। तब भी आपके पास यहाँ पे -3 ओवर, सो कोफिशिएंट विल बी -3। तो फैक्टोरियल तो फिर भी नहीं है, सो दैट विल बी C इज माई राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। ओके, फाइंड द रेजिड्यू जेड क्यूब। इसको फिर से ब्रेक कर लेते हैं। फाइन, तो पोल कितना है इसका? 1 -1। तो एक रिजल्ट क्या बताया था मैंने? रेजिड्यू एट इन्फिनिटी। यू कैन वॉच द रेजिड्यू एट इन्फिनिटी दिस लेक्चर। क्या बताया था मैंने रूल? रेजिड्यू एट इन्फिनिटी प्लस रेजिड्यू एट द पोल प्लस ये पोल है, इन सबका सम कितना होना चाहिए? 0। तो मैं पहले 1 के ऊपर निकाल लेता हूँ। इसका क्या है? सिंपल पोल है, तो इसका रेजिड्यू कितना आएगा? इसको छोड़ देते हैं, सो दैट विल बी 1/2। -1 का आंसर कितना आएगा? इस चीज को छोड़ देंगे, सो दैट विल बी -1 ओवर -2, और ये रेजिड्यू आपको इन्फिनिटी पे निकालना है। तो ये कितना हो गया? 1 हो गया ये। सो रेजिड्यू एट इन्फिनिटी इट विल बी -1 इज द right answer of the problem. Fine. This is the first method. Second method, a residue at infinity, which is minus of coefficient of 1 over z. क्लियर? तो पहले इसको z स्केयर से डिवाइड कर देते हैं, तो इट विल बी z ओवर। फाइन, इसकी सीरीज को एक्सपेंड कर देते हैं, 1 प्लस। फाइन, अब इस सीरीज को एक्सपेंड कर देते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। सो कैन यू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ 1 ओवर जेड? तो 1 ओवर जेड कब बनेगा? इस जेड को इस जेड स्केयर से करेंगे 1, तो इसमें फिल कर दो, आंसर इज अगेन -1 इज द राइट आंसर। दिस इज सेकंड मेथड। इस रेजिड्यू एट इन्फिनिटी के 4 मेथड्स मैंने आपको एक्सप्लेन करे हैं। यू कैन वॉच दिस लेक्चर रेजिड्यू एट इन्फिनिटी। 4 डिफरेंट मेथड इस लेक्चर में एक्सप्लेन्ड है। चलिए नेक्स्ट वन, f has the isolated singularity. F has the isolated singularity of an z minus a of n. It's a Lorentz series about a, then the residue at the point a, which is nothing but coefficient of z minus a. तो 1 over z minus a कब आएगा? when n will be -1। तो इसका n-1 का कोफिशिएंट ये क्या बन जाएगा आपका? इट इज a of
-1 इज द राइट आंसर। सिंपल कोफिशिएंट ऑफ 1/z का यूज करें हमेशा। ओके, एमएच सेट का पेपर है, फिर से साइन जेड लिखा हुआ है। फाइन, इसकी पहले एक्सपेंड कर देते हैं। जेड माइनस जेड क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल जेड रेज़ टू पावर 5 ओवर। आपने एक चीज नोट करी है, नहीं करी? चाहे वो एमएच सेट का एग्जामिनेशन है, चाहे वो गेट का पेपर है, और चाहे वो सीएसआर नेट का पेपर है, क्वेश्चन है, मैं सभी को एक ही मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। मैं ये देख नहीं रहा कि ये नेट का है, ये गेट का है, ये किसका है या किसका नहीं है। तो यही मैं आपसे भी कह रहा हूँ, मेथड को समझिए मेरे वीडियो से और इसी तरह से सभी क्वेश्चन को सॉल्व करिए। डोंट गो फॉर दी एनी ऑफ दी अदर्स लेक्चर्स। चलिए इस एफ की वैल्यू निकाल लेते हैं। डिवाइडेड बाय जेड क्यूब, तो जेड क्यूब से डिवाइड करेंगे 1/z² माइनस जेड क्यूब से डिवाइड करेंगे z² हो जाएगा एंड सॉन। फाइन, अब देखिए रिमूवेबल सिंगुलैरिटी कब आती है? जब इसमें नो नेगेटिव पावर ऑफ द जेड, लेकिन इसमें नेगेटिव पावर तो जेड लिखा हुआ है, इसका मतलब रिमूवेबल तो नहीं। और रिमूवेबल आप निकाल सकते हो, इसकी लिमिट निकालिए जेड अप्रोचेस 0 ऑफ द एफ। अगर तो ये आपकी लिमिट फाइनाइट आ गई देन यू कैन से इट इज ए रिमूवेबल, लेकिन यहाँ से आप देखो इसकी लिमिट निकालोगे तो इन्फिनिटी चली जाएगी। इससे पोल ये नेगेटिव आ गया, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, तो जेड इज टू 0 इज द पोल ऑफ ऑर्डर। हाईएस्ट पावर कितनी है नेगेटिव की? 2, सो दैट इज द आंसर, पोल ऑफ ऑर्डर 2। और अगर आपको इसका ई पार्ट में रेजिड्यू पूछ ले जाए तो कितना आएगा रेजिड्यू, बता सकते हो? रेजिड्यू क्या निकालना है आपको? कोफिशिएंट ऑफ 1/z। तो क्या इसमें कोफिशिएंट ऑफ 1/z मिला आपको? नहीं मिला, तो आंसर विल बी 0। फाइन। और अगर आपको इसका एक और पार्ट पूछ लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन जेड ओवर जेड क्यूब, क्योंकि इसका रेजिड्यू 0 है, सो 2 पाई आयोटा इंटू 0 करेंगे तो तब भी 0 आएगा। देखिए सिंगल क्वेश्चन के ऊपर आप सिंगुलैरिटी पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर, पोल पूछ सकता है, ओके, रेजिड्यू पूछ सकता है, इंटीग्रेशन पूछ सकता है एंड सो। चलिए फिर से एमएच सेट का एग्जामिनेशन है। कोस जेड की सीरीज से एक्सपेंड करते हैं। 1 माइनस z² ओवर 2 फैक्टोरियल z4 ओवर 4 फैक्टोरियल एंड सॉन। तो f निकालेंगे डिवाइडेड बाय कोस जेड क्यूब 1/z³, 1/2 फैक्टोरियल z ओवर 4 फैक्टोरियल। तो आपको क्या बोला है? इंटीग्रेशन, तो रेजिड्यू निकालना है आपको 0 पे। 0 तो बन रहा है ना ये, इसको मैं z माइनस 0 तो लिख सकता हूँ। कोफिशिएंट कितना आ गया? कोफिशिएंट -½ क्योंकि आपको इंटीग्रेशन करनी है, यू कैन मल्टीप्लाई विद 2 पाई आयोटा, तो माइनस ऑफ पाई आयोटा इज द राइट आंसर। और यहाँ से भी देख सकते हो, इससे क्या मीनिंग मिला आपका? z इज टू 0 इज द पोल ऑफ ऑर्डर, पावर कितनी हाईएस्ट? 3। चलिए लुक एट दैट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले मैं बहुत सारे मेथड बताऊंगा आपको। फर्स्ट मेथड, यू कैन यूज द आर्गुमेंट प्रिंसिपल। आर्गुमेंट प्रिंसिपल क्या कहता है? अगर एफ डैश ओवर एफ है तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ द जीरोस माइनस नंबर ऑफ द पोल। तो देखिए इसका डेरिवेटिव यही लिखा हुआ है ना, अगर मैं एफ इस जेड को एफ ले लूँ तो एफ डैश कितना हो जाएगा? 1। तो इसके नंबर ऑफ द जीरोस कितने हैं? जीरो इज माई 1, पोल इज माई 0, सो n माइनस पी कितना हो गया आपका? 1। सो आपका इंटीग्रेशन करना है आपको, सो दैट विल बी 2 पाई आयोटा इंटू n माइनस पी, दैट विल बी 2 पाई आयोटा। सो दैट मीन दिस द करेक्ट स्टेटमेंट, बट वी नीड अ फॉल्स स्टेटमेंट। फाइन, इसी क्वेश्चन को मैं सेकेंड मेथड से करता हूँ, 1/z। फाइन, इसका पोल कितना है आपका? पोल इज माई 0 और 0 इसके बीच में लाइक कर रहा है, दैट्स फाइन। सो कैन यू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ 1/z? तो इसका कोफिशिएंट 1/z का कितना है? 1। सो आंसर कितना हो जाएगा? तो दैट मीन दैट इज माई रेजिड्यू, सो 2 पाई आयोटा इंटू 1 अगेन इज द करेक्ट स्टेटमेंट। Similarly for this case, residue is 0 which are enclosing, so again the coefficient of 1/z is 1, so which is correct statement, but we need a false statement. Look at the third one, second options, z into dz.
So clearly say it's a polynomial, fine, and which is my analytic. Once this is my analytic, so integration will be 0. Or can you find the residue? Can you find the coefficient of 1 over z? No. So residue will be 0. So integration is my 0. That is also the correct state. And you can see what is a z bar. I can write as a z bar is 1 over z. So basically the integration is 1 over z, and its answer is 2 pi iota. Coefficient of the 1 over z is 1, but he said 0. That is not the right answer. A is the correct option of the problem. MH said again, which of the following statement is not true? Again, it's a very simple. Can you find the residue of this function? Coefficient of 1 over z, 1. So multiply by the 2 pi iota. This is my true statement. Or you can use the argument principle. Fine. If I choose f is my z, then clearly say f dash over f. So what is the number of the pole? Number of the zeros? 1. Number of the poles? 0. So the integration will be 2 pi iota into n minus p. That is my fine. अब आप मोर प्रैक्टिस करना चाहते हो आर्गुमेंट प्रिंसिपल की, मैं बच्चों कह रहा हूँ ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की प्लेलिस्ट फॉलो कर लीजिए, कहीं नहीं गिरोगे आप, कहीं नहीं गिरोगे आप. यू कैन सी आर्गुमेंट प्रिंसिपल, यू कैन सी 15 प्लस एग्जांपल्स ऑफ द आर्गुमेंट प्रिंसिपल. सभी सीएसआर नेट की क्वेश्चन भी इसमें अंदर है पहले से. ओके, 1 ओवर जेड स्क्वायर, पोल इसका 0 है, वो इसके बीच में लाई करता है. कैन यू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ 1 ओवर जेड? 1 ओवर जेड स्क्वायर के अंदर कोफिशिएंट तो मिलेगा ही नहीं आपको. सो कोफिशिएंट इज माई 0. सो दैट मीन्स रेजिड्यू इज माई 0. दैट मीन्स इंटीग्रेशन इज माई 0. सो विच इज अगेन माई करेक्ट स्टेटमेंट. बट हमें तो फॉल्स स्टेटमेंट चाहिए. This one is a z minus a. Can you find the coefficient of z minus a, which is my 1? Fine. So 1, that means is a 2 pi iota into 1 is again the correct state. Z minus 3. You can see the pole is my 3 and 3 minus 2, which is less than 3 satisfied. So can you find the coefficient of z minus 3? Coefficient of z minus 3 is 1. So the answer will be 2 pi iota, but it's a 0. That is my false statement. Right answer is D is the correct answer. Okay, look at this one. The sum of the residues tan z over z. Sum of the residues at the point here. I think it's a simple. What is the residues? Okay, can you expand the series of the tan z? First of all, what is the series of the tan z? Z plus z cube over 3 plus 2 over 15 z raised to power 5 and so on. So can you find the value of the f divided by z? Z square over 3 so on. So can you find the coefficient of 1 over z? 0. That means residue at the point 0 is my 0. यही तो हो गया ना, ये तो क्लियर हो गया. अब आप इसको ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या है. इसमें एक तो रेजिड्यू आएगा कॉरस्पॉन्डिंग टू 10, फाइन, और एक रेजिड्यू आएगा कॉरस्पॉन्डिंग टू दी जेड. जेड का मतलब 0. इस पे तो आंसर आपको मिल गया 0. और 10 के ऊपर मैंने आपको क्या आंसर बताया था? व्हाट इज द रूल फॉर द ए ऑफ 10 बी जेड इज 0. फाइन. सो रेजिड्यू ऑफ 0 plus 0 is 0 is the राइट आंसर. बट यहाँ पे एक क्या 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 हुआ है, सर्कल 2 बोला हुआ है ना. सर्कल जब 2 बोल दिया आपको, तो आप इसके अगर पोल निकालना चाहो तो पोल्स क्या क्या आएंगे मैं आपको बता रहा हूँ. पोल इज 0 और कोस जेड 0. दैट मीन्स 2n plus 1 पाई ओवर 2, यही तो आएगा ना. सो दैट विल बी प्लस माइनस पाई ओवर 2 प्लस माइनस 3 पाई ओवर 2 एंड सो ऑन. तो प्लस माइनस 3 पाई ओवर 2 दिस लाइज आउटसाइड. फाइन. इसके ऊपर आपने रेजिड्यू पहले निकाल लिया हमने बाय एक्सपेंशन सीरीज, तो पाई बाई 2 के ऊपर हम सीरीज को निकाल लेते हैं. फाइन. तो वो कैसे निकाल लेंगे? दो मेथड है फिर से. तो पहले तो प्लस पाई बाई 2 पे निकालते हैं, तो इसको पहले मैं पाई बाई 2 की फॉर्म में लिख लेता हूँ. ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसे. फाइन.
तो ऊपर वाली चीज क्या बन गई, पाई 10 पाई/2 प्लस इट्स नेगेटिव, और जरूरत नहीं इसकी, आसान कर लेते हैं। पाई/2 एंड -पाई/2 आर माई सिंपल पोल्स। फाइन। तो रेजिड्यू एट पाई/2 पे निकालिए, तो कितना आएगा, जेड माइनस पाई/2 साइन जेड ओवर जेड इंटू कोस जेड, लिमिट जेड अप्रोचेस पाई/2। तो साइन पाई/2 हो तो 1 ही हो गया आपका, जेड की वैल्यू पाई/2 हो गई, ये और ये इसे 0/0 फॉर्म, आई कैन अप्लाई दी एलोपिटर रूल, इसे 1 ओवर साइन जेड, तो ये आंसर कितना हो गया, 2 ओवर पाई, साइन जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप -पाई/2 पे निकालोगे तो उसका आंसर कितना आ जाएगा, लिमिट जेड अप्रोचेस -पाई/2, so that will be z plus पाई/2 sin z divided by z into cos z। अगेन sin z की वैल्यू -पाई/2 पे वैल्यू कितनी है, -1, और इसकी वैल्यू फाइनाइट है तो इसको बाहर ले लेते हैं, 0/0 फॉर्म लगा देते हैं, 1 ओवर साइन z, तो साइन ऑफ -पाई/2 ये कट जाएगा, -1 तो आंसर विल बी 2 ओवर पाई। सो टोटल कितना हो गया रेजिड्यू, 0 हो गया ना। तो पहले भी तो मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक से 0 ही बताया है डायरेक्टली, दो ही तो रेजिड्यू आएंगे ना आपके पास, tan z के कॉरस्पॉन्डिंग और z इज इक्वल टू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग। 0 के कॉरस्पॉन्डिंग आपने एक्सपेंड करा तो आपने रेजिड्यू क्या देखा, 0। इस पे आपने मेरी शॉर्टकट ट्रिक्स लगाई तो रेजिड्यू 0, सो टोटल रेजिड्यू इज माई 0। तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो और एज यूजुअल जो आप एक्सपेंड करते हो फॉर्मूला बेस वैसे भी कर सकते हो। ओके, फाइंड दी, पहले तो इस एफ को थोड़ा सही कर लेते हैं, इट्स पाई ओवर साइन, साइन ऑफ पाई जेड। फाइन। तो जेड इज इक्वल टू एन पे पूछा आपसे, जेड इज इक्वल टू एन पे, तो पहले तो जाओ तो एक्सपेंड कर लीजिए। ओके, पर एक्सपेंड करने के लिए आपको इसको जेड माइनस एन बनाना होगा ना पहले, यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है, तो आप बिकॉज जेड इज इक्वल टू एन है तो लिमिट लगा लेते हैं सिंपल, जेड अप्रोचेस एन, जेड माइनस एन इंटू एफ जेड। फाइन। पाई इज माई आउटसाइड, तो ये 0/0 फॉर्म बन जाएगा, सो आई कैन यूज द एलोपिटर रूल, limit z approaches n, 1 over cos into pi z into pi, pi will be outside, so 1 over cos of n pi, so what is the value of the cos n pi, minus 1 over -1 raised to power, so that will be, और n, so यही आंसर हो जाएगा। फाइन, इसको मैं ये भी, यही तो सेम ही तो चीज़ है ये, n इज माई इंटीजर। फाइन, आप इसको मल्टीप्लाई बाय ये दोनों चीज से करोगे तो डिनोमिनेटर तो फिर भी +1 हो गया आपका। फाइन, सो डी इज द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। ओके, फाइंड द रेजिड्यू ऑफ द फंक्शंस -2 -2। देखिए माइनस, नो -2 नहीं है, -2 तो इसका पोल ही नहीं है, इसके पोल क्या क्या है आपके पास, पोल्स आर z is equal to 1 1 2, so this is my simple pole। फाइन, दिस इज माई डबल पोल, तो इसका मतलब -2 तो इसका पोल ही नहीं है, तो इसका मतलब ऑल दी ऑप्शंस आर रॉन्ग। फाइन, अदरवाइज अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता देन इट्स -2, देन इट कुड बी द फाइन। तो आप कैसे निकालोगे रेजिड्यू एट दी -2, तो -2 सिंपल पोल है, इसको छोड़ दो और यहाँ पे फिल कर देते हैं, वैल्यू कितनी होगी, -2 का स्क्वायर ओवर -2 -1, so that will be 4 3 4 over 9, C is the right answer। Fine, the residue at the point 1, so clearly say poles क्या क्या है, -4 1 1, these are my डबल पोल, तो डबल पोल है तो आपका रेजिड्यू कैसे निकालोगे, लिमिट जेड अप्रोचेस 1 1, m is my 2, double pole means m is equal to 2, so m minus 1th derivative into f z, तो फिल कर दो वैल्यू, लिमिट z approaches 1 1 factorial is 1, z minus 1 into, so 2z divided by z plus 4, find the derivatives, oh sorry, find the first derivative
and then substitute the limit as 1. Z plus 4 into 2 minus 2z into 1. Now you can substitute 1, 5 into 2, 10 minus 2, 5 square is 25. 8 divided by 25 is the right answer of the problem. Okay, find the residue. So again, you can expand this cosine series, but before that you have to write in terms of z minus 1. In that case, you have to use the cos of a plus b. That is my cos a, cos b minus sin a, sin b. But that is a very lengthy procedure. Fine. The second way is you can find the pole. Pole is z is equal to 1. So I can find it's a simple pole. So residue will be, I can substitute the value in the apart from the, so it's a cos of 1. So cos 1 I can written as, what is the cos of x? E raised to power iota x, e raised to power minus iota x divided by 2. So I can substitute, it's a e raised to power iota, e raised to power minus iota divided by 2. C is the right answer of the problem. The function f, which is 1 over z, z minus 3 raised to power q, has the pole of order p, fine, and residue r at z is equal to 1. So find z is equal to 1, wrong. Z इसका pole क्या है? Can you find the poles? Pole is z is equal to 0 and 3, 3 and 3. तो 1 तो कहीं भी नहीं है. Fine. So that means p will be 0, r will be 0. पर यहाँ पे I think that must be 3. Fine. Agar if it is a z1 then r is 0 is the final answer. But if they are asking about the z is equal to 3, fine, is a pole of, no sorry, p is 1, p, yes. Now pole of order, so if p is equal to 1, नहीं ये 1 तो आना ही नहीं चाहिए ना, 1 is not be there. Now what is the meaning? If p is equal to 1 means this function has a pole of order 1. The pole of order 1 is corresponding to the z is equal to 0. Z is equal to 0 is the corresponding, the pole order is 1. So can you find the residue corresponding to the 0? I can substitute the value 0 at this point. It is minus 1 over 27. So first option is cancelled. Similarly, D option cancelled. Now if P is equal to 3, P3 means order of 3. Fine. Then can you find the residue? That means residue corresponding to the 3, 1 over 2 factorial, second derivative of z minus 3 whole square of this number. So can you find the second derivative? The first derivative will be minus 1 over z square, second derivative will be 2 over z cube. Now at the point z is equal to 3. Fine. So this number will be 1 over 27. So because the statement is not clear, so r will be must be 1 over 27. So none of these is the, so it may be the answer is wrong, or it may be that the possible, instead of that it will be 1. So let's start with, if it is a 1 what will happen? समझ गए ना, आंसर नहीं मैच हो रहा तो स्टेटमेंट में कहीं गड़बड़ है. अगर यहाँ पे z1 होगा तो क्या होगा, ये लिमिट 1 पे निकालोगे आप, तो 1 पे निकालोगे तो आंसर कितना आ रहा है आपका 1. इन दैट केस द C is the right answer if this is my 1. Otherwise the statement is the incomplete. Okay, find the residue at the double pole. Z approaches minus 1. So what you can do, double pole is 1 factorial. डबल पोल मीन्स ये डबल पोल है ना आपका, इसको छोड़ दो, जो बाकी रह गया आपका जेड स्क्वायर माइनस 2z ओवर जेड स्क्वायर प्लस 4. फाइन, यही तो है ना आपका फॉर्मूला, z प्लस 1 स्क्वायर इंटू एफ, एफ फिल करोगे z प्लस 1 कैंसल. सो 1 फैक्टोरियल इज 1. कैन यू फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव? इट विल बी जेड स्क्वायर प्लस 4, जेड स्क्वायर प्लस 4, 2z minus 2 minus of 2 into z. Now you can substitute, limit is minus 1. This is 4 plus 1 5. This is minus 2 minus 2 minus 4
minus 1 minus this is a minus 1 plus of 2, that is my plus 1, this is my minus of 2, divided by 4 plus 1 5, 5 square is 25, minus 20 plus 2 divided by 25 minus 18, so minus, so let me check again, it's a minus 1, so 4 plus 1 is 5, minus 2 minus 2 minus 4, z square minus 2z is a, sorry, once you substitute minus 1 is a plus 1 and plus of 2 is a 3 and it's a minus, so it's a minus 6, so it's a minus 14 divided by 25 is the right answer of the problem. कई बार हो जाता है जल्दबाजी करने में प्लस माइनस की मिस्टेक. द रेजिड्यू एट द इंफिनिटी, कैन यू फाइंड द पोल? पोल्स आर माई 2 3 5. तो क्या रूल बताया था मैंने आपको? इन्फिनिटी के केस में इन्फिनिटी और इन सब का रेजिड्यू निकाल के प्लस कर दो. रेजिड्यू एट 2, रेजिड्यू एट 3, रेजिड्यू एट 5 विच इज माई 0. सो सबसे पहले रेजिड्यू 2 निकालते हैं, सिंगल है इसमें, यहाँ सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं. इट इज 8 ओवर माइनस 1 माइनस 3, सो प्लस 3. 3 के लिए कहाँ फिल करेंगे? इस टर्म को छोड़ देते हैं. इट विल बी 27 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ 2 प्लस 5 के लिए 5 वाली टर्म को स्किप कर देते हैं, सो दैट विल बी 125 डिवाइडेड बाय 3 into 2, 3 into 2 is 6 which is 0. Find a residue at infinity. So can you solve this? You can easily solve this. You will get the answer as. Fine. Second method. ये तो आपकी कैलकुलेशन हो गई. Now what is the shortcut tricks? Residue at infinity. जब भी निकालो, whenever your poles are my simple pole. Remember always this rule is applicable when the poles are my simple, then the residue will be minus sum of the pole. Not the sum of the residues, only sum of the poles. So can you find the sum of the pole? Sum of the pole is 10. Answer will be minus of 10 is the right answer of the problem. Fine. You can try to solve it. You will see the answer will be minus 10 is the correct answer. Is it okay? चलिए, next one, residue at 3. So clearly say 3 is my simple pole. So how you can find the residue? So इसको skip कर देते हैं, बाकी सब में z की वैल्यू 3 फिल कर दो. So that is a 27 is a 1, 3 minus 1 2, 2 raised to power 4 is 16, 3 minus 2 is 1, 27 over 16 is the right answer. मेरे को तो 2 लाइन लिखने की जरूरत पड़ी आपकी. Okay, which of the following? So again you can see this is my chord of pi z. It's a pi, it's a z square. Then simple pole, residue and so on. सबसे पहले कोड की सीरीज खोल देते हैं. पहले मैं कोड की सीरीज लिख दूं आपके लिए, अगर आपको रिमेंबर है. एक क्वेश्चन पहले भी तो करा था हमने कोड का. फाइन. सो व्हाट इज द कोड ऑफ सीरीज? 1 over a minus a over 3 minus a cube over 45 and so on. So let's start with the chord of pi z. So it will be 1 over pi z minus pi z over 3 minus pi cube z cube over 45 and so on. अब आप इसको पाई से मल्टीप्लाई करके और जेड स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं. तो जैसे ही जेड स्क्वायर से डिवाइड करेंगे इट विल बी पाई ऑफ जेड क्यूब, जेड स्क्वायर से डिवाइड करेंगे माइनस पाई ओवर 3 माइनस पाई क्यूब जेड ओवर 45 and so on. So can you find the residue? Coefficient of 1 over z. Where is the coefficient of 1 over z? It's a z square, sorry, it's a z. So that is my coefficient of the 1 over z minus pi over 3, and 1 pi is also outside. So residue is the minus pi square over 3, but it's a positive, that is cancelled. Okay. Now can you find the pole? What is the highest power? Clearly say z is equal to 0 is the pole. What is the highest power?
3 of order 3. So that's the second is the correct answer. And 1, 2, 3 are the only poles, are the only simple pole. Only, the word is the only. That's again not true, because you can see how you can find the pole. Sine of pi z is 0, z square is 0. Sine of pi z 0 means pi z is n pi, and this is my 0 comma 0. This is a double pole, but we are needed with the, so z is plus minus n, that means 1 minus 1 2 minus 1 all are my simple pole, but they said only the positive term but not negative are also the simple pole. That option is also cancelled. C is my right answer of the problem. Find the coefficient of the 1 over z. That means your target is to find the residue. Can you find the sign of the series? देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया मैंने आपके लिए, और दो लाइन से ऊपर से आप सॉल्व नहीं कर पा रहे इजिली. फाइन, तो जेड स्केयर से डिवाइड कर देते हैं, 1 ओवर जेड 3 फैक्टोरियल, तो कोफिशिएंट कितना हो गया आपका 1. सो डी इज द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम. देखिए बार बार यू कैन फॉलो दिस प्लेलिस्ट as well as the CSIR NET UGC gate. Okay, I'm waiting. I will check how many likes and comments on the video. So based on that, I will decide how many of you are really benefited for this case. Okay, so the sum of the residue is there. So you know the residue at infinity. What are the poles? A residue at 1, a residue at 2, a residue at 3, it will be 0, and the sum of the residue is always 0. There is no need to calculate the values of what is the residue 0, what is the residue 1, and so on. Anyhow, can you calculate the value of the residue at the 0 in a 1 second? Can you calculate the answer? Because you can see z is 1, 2 and 3 are my simple poles. तो अभी मैंने आपको क्या बताया, so negative of sum of them, so minus of 6 is the residue at infinity. चलिए, f is a function, small f is the function which is defined as capital F divided by capital G, has a simple, okay, firstly I can choose A is my 0. This has the simple pole, इसका मतलब जब भी आप इसको expand करोगे तो Z has a simple pole of power 1, तो यहाँ coefficient कुछ भी हो, that's the expansion of the, such that f of a is non-zero, g of a is my 0, g of a is my 0, so that means g of 0 is my 0 and derivative is my non-zero. फाइन, तो क्या ले सकते हो आप फंक्शन, g को मैं एक z ले लूँ, सिंपल, सेटिस्फाई कर गया आपका सारा कुछ. इज इट ओके? नाउ व्हाट विल बी द रेजिड्यू ऑफ द f? तो f क्या बना आपके पास, देखिए कैपिटल f ऑफ a इज नॉन जीरो, कोई भी एक f ले लेते हैं, f कैसा भी हो, सो लेट्स से f इज माई 1. फाइन, तो ये क्या बन गया आपका 1 ओवर z. f ऑफ 0 इज माई नॉन जीरो, कैपिटल f के ऊपर तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. फाइन, तो आपको क्या निकालना है, रेजिड्यू, दैट इज द कोफिशिएंट. कोफिशिएंट कितना आया इसका 1, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना हो गया 1. सो लेट्स चेक विद द ऑप्शन. f डैश कितना हो जाएगा 0, so ये ऑप्शन तो कट गया. f डैश, f is my 1, g dash of, what is the g dash 1, so satisfied, none of this is a wrong, B is the correct option. Residue at the point, okay, firstly z square plus a, so can you find the pole? Pole is z is equal to plus minus iota a, which is of double pole. Fine, because the power is my 2, so I can firstly write this is my z plus iota a, z minus iota a. Now your target is to find the residue at the point iota a, because it's a double pole, so I can start with the first derivative of z minus iota a whole square into f, so that number will be z plus iota a square. f से मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल हो जाएगा. So can you find the first derivative at the point, so it will be minus of 2 divided by z plus iota a cube.
Now you can substitute the value of z is iota a, so that will be 2 iota a cube. That number will be minus of 2, 8 a cube. Iota cube will be minus of iota. It will be cancel out 1 over 4 a cube iota. 1 over 4 a cube iota is the right answer of the problem. Okay, let z is a circle, mth set, function is my 2z plus 5 divided by z square plus 2z plus 5. So find the pole. Pole will be z square plus 2z plus 5 is 0. This implies minus of 2 plus minus b square minus 4ac divided by 2. 16. 16 is my 4 iota over 2. Minus 1 plus iota, minus 1 minus iota. Fine. Now you can check whether these poles lies on the unit circle. So can you find the value of the modulus 1? This is my root 2 and both the values are my greater than 1. So both the poles are lies outside this region or outside the circle. That means the residue. That means this function is my analytic. Once the function is analytic, residue is my 0. So residue is my 0. That means 2 pi iota into 0 is the right answer of the problem. Okay, find the value of cos pi z. Sorry, cos of 2 pi z divided by, I can make the coefficient 1. Again, there is no need. There is no need. Fine. Z minus 1, Z minus 3. So can you find the pole? Poles are my half and poles are my 3. And the circle is Z is equal to 1. So clearly say this pole lies outside the circle. Fine. Now this is my simple pole. तो simple pole के लिए क्या करोगे आप? इस वाली quantity को छोड़ दोगे, but it is a Z is half. So your target is to find the limit is half z minus half of fz. So clearly से इसलिए मैंने कहा कि पहले इसका कोफिशिएंट 1 बना लो आप. जैसे आप इसका कोफिशिएंट 1 बना लोगे then it will be twice. Now you can see that number will be cancel out. Then you can substitute the value of the z is half on these cases. Fine. You can see it will be cos of 2 pi z divided by twice of z minus 3. So when you substitute half, numerator is cos of pi, denominator will be half minus. Cos of pi is my minus 1, it's a twice, it will be minus 5 by 2. Fine, so answer is plus 1 over 5. So because it is integration, 2 pi iota into 1 over 5. 2 over 5 pi iota is the right answer of the problem. Okay, tan hyperbolic residue of the at the singular point. So can you get the answers? Tan क्या बताया था मैंने? A tan of B of Z. फाइन. इसका अगर ये फंक्शन है तो आपका रेजिड्यू क्या होगा? रेजिड्यू इज माई 0. फाइन. तो आप इस फंक्शन को लिख सकते हो इसकी फॉर्म में. आई कैन राइट दिस नंबर इज, ये बन जाएगा ना फंक्शन आपका. इज इट ओके? So again a and b are there, but the residue is always 0. There is no need to calculate. Answer is my 0. Otherwise, this is the first method. Second method is, do you know the expansion of the tangent? Tan hyperbolic z. Do you know the expansion of the tan hyperbolic z? What is the expansion of the tan z? Tan z will be z minus z cube over 3. आगे क्या होता है? Sorry, tan z is positive plus 2 over 15 z is power 5 and so on. So hyperbolic will be z minus z cube over 3 minus 2 over 15 and so on. So again you can see, can you find the coefficient of 1 over z? No. So that means residue is again 0 is the correct answer. Okay, look at this one. I can write the function is 3 into z square plus z
divided by z plus 1, z minus 1. Fine. Can you find the pole? Poles are my 1 and minus 1 and both are lies inside the circle. So my target is to find the residue at 1, find the target residue at minus 1 and clearly say both the poles are my simple pole. So how you can find the values corresponding to the 1? I can substitute the value in the remaining portion. So this number will be 3 plus, sorry, z plus 1. This is z plus 1 corresponding to z minus 1. So this number is 1 plus 1. Corresponding to the minus 1, I can skip this part. So 3 minus 1 over, so this number is 4 over 2. This number is 2 over minus 2. 2 minus 1, 1. So answer will be 2 pi iota into 1. So that is a D is the right answer of this problem. So you can see that it's a very simple way I can solve each problem for you, and I hope you can also support me by liking, share this video and subscribe my YouTube channel. The next lecture very soon we will upload on the Schwarz lemma. You can follow the playlist of the CSIR net and the complex analysis for the more details videos. I hope you can share this video with your friends. Best of luck students, and don't forget to subscribe my YouTube channel. Happy learning. Best wishes.